ہمارا قومی موومنٹ آپریٹ بھی پاکستان میں کرے. آج بھی لا تعلق کی اگر یہ بات کسی نے کہی ہے. کیا -1 فارمولا لاگو ہو گیا؟ ایم کیو ایم پاکستان اور لندن کی راہیں جدا. فاروق ستار نے ایم کیو ایم پاکستان کی کمان سنبھال لی. الطاف حسین کے پاکستان مخالف بیان سے لا تعلقی کا اعلان. ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے ایسی بات کو دہرانے کی ہم اجازت نہیں دیں گے یار. میرے خیال میں اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا. اور دیکھیں اسی لیے اور صحت کا مسئلہ، ذہنی تناؤ، ذہنی دباؤ کا مسئلہ یہ بھی کہا تو فیصلے ہم کر رہے ہیں یہ بھی کہہ دیا. اب اس سے زیادہ میری جان لینا چاہتے ہیں تو وہ لے لیں یار. پارٹی فیصلے اب لندن سے نہیں پاکستان میں ہوں گے. فاروق ستار نے الطاف حسین کی ذہنی صحت کو خراب قرار دے دیا. کہا وہ ہمیشہ خود کو اور ہمیں بھی رسوا کرواتے ہیں. اگر آگے بڑھنا ہے تو یہ -1 کی بات کو بھی یہیں پر پیچھے چھوڑ کے ہم آگے بڑھتے ہیں. چاہے مذاق کہیں تو یہ +5 فارمولا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو 4-5 بیٹھے ہیں یہ 5 ہو یا 15 ہو یا جتنے. ایم کیو ایم تشدد، بغاوت یا ملک دشمن پالیسی پر عمل نہیں کرتی. وطن مخالف کی بات کرنے والوں کی ایم کیو ایم الگ اور ہماری الگ ہے. یہ -1 فارمولا نہیں بلکہ +5 کا فارمولا ہے. فاروق ستار کی پریس کانفرنس. -90 کو کھولا جائے، سیل ختم کیا جائے. کچھ نعرے ناقابل معافی ہوتے ہیں. عامر لیاقت حسین بھی فاروق ستار کے ساتھ کھڑے ہو گئے. الطاف حسین پہلے اپنی ذہنی حالت ٹھیک کریں، بار بار معافی تلافی نہیں چلے گی. پاکستان مخالف باتیں برداشت نہیں کر سکتے. عامر لیاقت کی میڈیا سے گفتگو. پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایک جو ان کی ذہنی کیفیت ہے اس ذہنی کیفیت کو بہتر کر لیں، کیونکہ بار بار معافی اور بار بار تلافی، کچھ نعرے ناقابل معافی ہوتے ہیں اور ناقابل تلافی ہوتے ہیں، اس کے بعد کوئی بات نہیں کی جا سکتی. فاروق ستار کی پریس کانفرنس پر ایم کیو ایم لندن کا رد عمل سامنے آ گیا. الطاف حسین مائنس نہیں ہوئے، وہ قائد تھے اور قائد رہیں گے. مصطفیٰ عزیز آبادی کی آج نیوز سے بات چیت. ایم کیو ایم کے سینئر رہنما عامر خان رہا ہو گئے. الطاف حسین کے بیان سے اظہار لا تعلقی، فاروق ستار کی حمایت کا اعلان. سلیم شہزاد نے بھی فاروق ستار کی حمایت کر دی. جلد وطن واپسی کا امکان. مصطفیٰ کمال نے فاروق ستار کی پریس کانفرنس کو ڈھونگ قرار دے دیا. کہا کہ فیصلے اب بھی لندن سے ہی ہوں گے. متحدہ گرتی ہوئی دیوار ہے، روکنے والے ملبے میں دب جائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا آج نیوز کا دورہ. کہتے ہیں ایم کیو ایم کا اپنے قائد سے اظہار لا تعلقی کافی نہیں، اب عمل کر کے بھی دکھانا پڑے گا. دیکھیں نہ صرف لا تعلق کریں پر آگے اپنے ایکشن سے بھی دکھائیں کہ جی وہ اس ملک کے محب وطن ہیں. الطاف حسین نے کراچی کا برا حال کر دیا. لوگوں کو چن چن کر قتل کروایا گیا. مہاجر پاکستان سے پیار کرتے ہیں. حکومت الطاف حسین کے خلاف برطانوی حکام کو شکایت کرے. عمران خان کا مطالبہ. پاکستان مخالف بیان اور اشتعال انگیز تقریر. کراچی میں الطاف حسین کے خلاف مقدمات درج. انسداد دہشت گردی اور اشتعال انگیز بیانات کی دفعات شامل. قمر نوید، قمر منصور اور شاہد پاشا کو انسداد دہشت گردی عدالت نے ریمانڈ پر دے دیا. الطاف حسین کے پاکستان مخالف بیان پر برطانوی حکومت کو خط لکھا جائے گا. ملکی سلامتی کے خلاف کوئی عمل برداشت نہیں کریں گے. وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ. وزیر داخلہ نے برطانوی حکام سے رابطہ کر لیا. الطاف حسین نے سنگین جرم کا ارتکاب کیا. برطانیہ ایسے شخص کو قانون کے دائرے میں لائے. چودھری نثار کی درخواست. پنجاب اسمبلی میں الطاف حسین کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور.
सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी मजम्मती करारदादें जमा करा दी गईं। कराची में महकमा दाखिला सिंध ने दफा 144 के तहत रेड जोन की हदूद में जल्द से जुलूसों पर पाबंदी लगा दी। 5 से ज्यादा लोगों के रेड जोन में इज्तिमा पर 2 माह के लिए पाबंदी होगी। आर्मी चीफ का कुरम एजेंसी और हंगू की तहसील टल का दौरा, फौजी अफसरान और जवानों से मुलाकात। जनरल राहील शरीफ कहते हैं मुल्क भर से दहशतगर्दों की खुफिया पनागाहों और हमदर्दों का चुन चुन कर मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। कराची का मेयर कौन होगा? सियासी कशीदगी के बीच कराची समेत सिंध भर में मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब कल होगा। मुस्लिम लीग फंक्शनल के इम्तियाज शेख पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। PS 11 के नशस्त और वजीर आजम की मुआवनत खुसूसी से भी मुस्ताफी होने का ऐलान। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं शहजाद हसन। आपको बताएं कराची की सियासत में एक ही दिन में बड़ी हलचल आ गई है। अब खबर आ रही है कि डॉक्टर आमिर लियाकत ने बड़ा फैसला कर लिया है और MQM से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। आमिर लियाकत हुसैन ने MQM छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि मैं आज से MQM में नहीं हूं, MQM से इजहार लाताल्लुकी करता हूं। डॉक्टर आमिर लियाकत का ताज़ा बयान सामने आया है। जी हाँ, आमिर लियाकत हुसैन कहते हैं कि मैं MQM का दिफा कर करके थक चुका हूं। MQM कायद को अब लाताल्लुक ही रहना चाहिए। MQM ही नहीं, सियासत भी छोड़ रहा हूं, ऐसा कहना है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का। उन्होंने ये भी कहा है कि ये फैसला उन्होंने जज्बात में आकर नहीं किया। साथ ही साथ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने पूरी कौम से मुआफी भी मांगी है और ये भी कहा है कि कौम से अपने इस फैसले पर बार बार मुआफी मांगने को भी तैयार हूं। जिसने संभालना है संभाल ले, मेरा MQM से अब कोई ताल्लुक नहीं है। उनका कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ बातों का दिफा नहीं कर सकता। आमिर लियाकत हुसैन का ताज़ा बयान सामने आया है। सियासत में एक हलचल मची है। अगर हम कराची की सूरत हाल की बात करें, हर लम्हे के बाद अगर हम कहें कि एक बड़ी तब्दीली आ रही है तो गलत नहीं होगा। ऐसी ही एक बड़ी तब्दीली हम आपको आगाह कर रहे हैं इस बड़ी तब्दीली से कि आमिर लियाकत हुसैन ने MQM छोड़ने का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान करते हुए आमिर लियाकत हुसैन का क्या कहना था, हम आपसे शेयर करेंगे। बात ही नहीं हूँ और ना मैं ओवरवेल्ड हूँ, मैं बहुत होशो हवास की हालत में इंतहाई अदब के साथ कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की सियासत से अपने आप को अलहदा कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान की सियासत से खुद को अलहदा कर रहा हूं और फैसले पर बार बार कौम से मुआफी मांगने को तैयार हूं, ऐसा कहना है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का। लेकिन नाजरीन, हम आपको याद करा दें कि आज शाम जब फारूक सत्तार ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें ऐलान किया गया था कि अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है मुत्तहिदा के कायद से, उस वक्त आमिर लियाकत हुसैन मौजूद थे डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ। उन्होंने कहा था कि बार बार ऐसे बयानात दिए जाते हैं, अल्ताफ हुसैन की जानिब से ऐसे नारे लगाए जाते हैं जिन पर कोई माफी कोई तलाफी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा था कि वो फारूक सत्तार के साथ खड़े हैं, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने ये फैसला किया है कि वो MQM का साथ नहीं देंगे। वाकई जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब से लेकर अब तक पता नहीं क्या तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को ये कहना पड़ गया कि वो सिर्फ MQM ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की सियासत को छोड़ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, ये आपको एक दफा फिर सुनाते हैं। कुछ बातें यही करती हैं, मेरी बड़ी प्यारी बहन है। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं जज्बाती बिल्कुल नहीं हूँ। आप मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, मेरी प्यारी बहन है आप, और ये मेरे भाई हैं। मैं जज्बाती नहीं हूँ और ना मैं ओवरवेल्ड हूँ, मैं बहुत होशो हवास की हालत में इंतहाई अदब के साथ कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की सियासत से अपने आप को अलहदा कर रहा हूँ। शाहजी बीबी को पाकिस्तान की सियासत से अपने आप को अलहदा कर रहा हूँ, MQM कायद को अब लाताल्लुक ही रहना चाहिए, ये भी कहा आमिर लियाकत हुसैन ने। उनका कहना था कि वो दिफा कर करके थक चुके हैं, MQM ही नहीं बल्कि सियासत भी छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने एक ताज़ा बयान दे दिया। शाम तक उनका मूड कुछ और था, उनकी बातें कुछ और थीं। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे उस वक्त उन्होंने फारूक सत्तार को सपोर्ट करने का ऐलान किया था, लेकिन अचानक उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने सियासत भी छोड़ने का ऐलान कर दिया और साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी हमेशा के लिए
छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हम आपको इस अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, जो हमने आपको आगाह किया कि आज शाम तक, अब से थोड़ी देर पहले तक MQM के साथ खड़े थे, और उस बड़े फैसले के बाद भी जब ये कहा गया कि -1 जो है उस फार्मूले पर अमल किया जाएगा, अल्ताफ हुसैन जो है MQM के लीडर नहीं रहे हैं, फारूक सत्तार जो हैं अब इस पार्टी की कमान संभालेंगे। उस वक्त भी हमने देखा कि इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन फारूक सत्तार के साथ खड़े थे, लेकिन अब से थोड़ी ही देर पहले उन्होंने इस अहम बात का ऐलान, मजीद MQM का साथ नहीं दे सकते। बिल्कुल, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और लंदन के दरमियान भी दरार पड़ गई है। MQM पाकिस्तान की कमान फारूक सत्तार ने संभाल ली है। कहते हैं कि अब फैसले लंदन से नहीं बल्कि पाकिस्तान से किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि MQM तशद्दुद, बगावत या मुल्क दुश्मन पॉलिसी पर अमल नहीं करती। मुत्तहिदा का मकसद सिर्फ क़याम अमन के लिए कोशिशें करना है। उन्होंने ये भी कहा कि ये -1 फार्मूला नहीं बल्कि +5 का फार्मूला है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की सियासत कर रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ऑपरेट भी पाकिस्तान में करे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और लंदन की राहें जुदा हो गईं। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने लकीर खींचकर मुत्तहिदा पाकिस्तान की बागडोर खुद संभाल ली। कहा कि हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान मुखालिफ बयान हमारी पॉलिसी नहीं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की सियासत कर रही है। मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान में सियासत कर रही है और इस गलती की बार बार मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इसलिए जरूरत इस बात की है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ऑपरेट भी पाकिस्तान में करे। MQM के रहनुमा अपना बयान देने गुज़िश्ता शब कराची प्रेस क्लब पहुंचे, ताहम उन्हें मीडिया से बातचीत किए बगैर ही रेंजर्स अपने साथ ले गई। मामला जहां से खत्म हुआ था वहीं से दोबारा शुरू किया गया। कल भी जब रात को हम आए थे तो हमारा मकसद ये था कि हम ऐसे नारों को और इस तरह की जो बात हुई है उससे लाताल्लुकी का इजहार भी करें, नंबर 1, उसकी मजम्मत भी करें, नंबर 2, उस पर इजहार निदामत भी करें। अपने खिताब में फारूक सत्तार ने इस तासुर को जायल करने की कोशिश की कि हम किसी के कहने पर यहाँ कुछ बात करने नहीं आए। कारकुन ऐसा अमल करें या कायद किसी भी कैफियत में ऐसा अमल करें, ये जिम्मेदारी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान लेती है कि हम ऐसा अमल दोहराने नहीं देंगे। फारूक सत्तार ने MQM के कायद की ज़हनी सेहत को खराब करार दिया। कहा कि MQM के कायद हमेशा खुद को और हमें भी रुस्वा करते हैं। उन्होंने -1 फार्मूले के सवाल पर जवाब में कहा कि -1 नहीं, ये +5 फार्मूला है। अगर आगे बढ़ना है तो ये -1 की बात को भी यहीं पर पीछे छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। अपने बयान में उन्होंने वाज़ेह किया कि MQM का पाकिस्तान मुखालिफ बयान से ना तो कोई ताल्लुक है और ना ही मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म से ऐसी बातें दोहराने की इजाजत दी जाएगी। और अगर कोई और MQM ऑपरेट कर रही है जो पाकिस्तान को मुर्दाबाद कह रही है, अगर कोई और MQM कह रही है, तो फिर हमें बताया जाए वो MQM कौन सी है, फिर वो MQM वो लोग संभाले। MQM हम है, MQM हम है और हम MQM है। फारूक सत्तार MQM से लाताल्लुकी के हवाले से बार बार पूछे जाने वाले सवालों पर खफा हो गए। बोले कि साफ साफ अल्फाज में अपना मौकिफ पेश कर दिया, अब मेरी जान लोगे। सेहत का मसला, जहनी तनाव, जहनी दबाव का मसला, ये भी कहा तो फैसले हम कर रहे हैं, ये भी कह दिया। अब इससे ज्यादा मेरी जान लेना चाहते तो बोले ले यार। फारूक सत्तार ने मीडिया पर हमलों की भी मजम्मत की और साथ ही MQM के मरकज 90 समेत तमाम दफातर खोलने की अपील भी कर दी। हमारे दफातर सील हुए हैं, हमारी जो सियासी सरगर्मियां रोकी गई हैं, तो हमारे 90 को खोला जाए, सील खत्म किया जाए। सियासी जो दफातर हैं MQM के, उनके सील उनको खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा पर पाबंदी लगाने की सोच को तर्क किया जाए। तशद्दुद हमारा रास्ता और मकसद नहीं। कराची में जो कुछ हो रहा है इस पर रिएक्शन भी सामने आ गया है और ये रिएक्शन आया है लंदन से। मुस्तफा अजीज आबादी की जानिब से कहा यह गया है कि MQM लंदन और MQM पाकिस्तान अलग अलग नहीं है, MQM एक ही जमात है।
MQM के कायद की पोजीशन अपनी जगह मौजूद है, ऐसा कहना है मुस्तफा अजीज आबादी का। और उन्होंने ये भी कहा है कि MQM का 2 टुकड़ों में बंटने का तज्जिया गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि MQM के कायद माइनस नहीं हुए। MQM के कायद पहले भी पार्टी के फैसले नहीं करते। MQM के फैसले पहले भी पाकिस्तान में होते थे, लेकिन उन्होंने तस्लीम किया कि हकीकत यह है कि MQM पाकिस्तान में ही रजिस्टर्ड है। मुस्तफा अजीज आबादी हमारे प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू कर रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं उनका क्या कहना था। में ये जो एक नतीजा अर्ज कर लिया गया है कि कोई खुदा न खासा MQM कोई 2 टुकड़ों में बढ़ गई है, तो मैं समझता हूँ कि ये तज्जिया गलत है। अब जहाँ तक देखिए इस बात का ताल्लुक है कि आज़ाद भाई की जात का, तो आज़ाद भाई इस तहरीक के MQM के बानी हैं, कायद हैं। बाकी काफ़ी कन्फ्यूजन है यहाँ पर, क्योंकि फारूक सत्तार साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने कहा था कि अब कराची में फैसले होंगे, पाकिस्तान में MQM के सारे फैसले किए जाएंगे। लेकिन मुस्तफा अजीज आबादी ने 8 बजते ही हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए ये क्लियर किया है कि जो MQM लंदन और MQM पाकिस्तान 2 अलग नहीं है, ये एक ही पार्टी है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ही हैं। तो काफ़ी कन्फ्यूजन है MQM लंदन की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं और जो फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। नाज़रीन, अभी कुछ बात करेंगे MQM के फारूक सत्तार की, जो सुबह कई घंटों बाद रेंजर हिरासत से रिहा हुए तो पहले अपने घर पहुंचे, जहां अधूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा करने का ऐलान किया। लेकिन प्रेस क्लब आमद से पहले अचानक होटल चले गए। उनकी आज की मसरूफियात क्या रहीं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार रिहाई के बाद पहले अपने घर पहुंचे, जहां उन्होंने कराची प्रेस क्लब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया। प्रेस क्लब पर तैयारियां मुकम्मल की गईं, लेकिन अचानक वो दोस्तों और अरकान असम्बली से मुशावरत के लिए होटल चले गए। कुछ देर मुशावरत के बाद प्रेस क्लब के लिए रवाना हुए। इस दौरान सहाफियों ने गुज़िश्ता रोज के वाक़े पर एहतजाज किया और प्रेस क्लब के दरवाजे बंद कर दिए। कुछ देर बाद फारूक सत्तार साथियों समेत प्रेस क्लब में दाखिल हुए और मीडिया से गुफ्तगू के बाद फारूक सत्तार घर रवाना हो गए। मुत्तहिदा कायद के पाकिस्तान मुखालिफ बयान के बाद सोशल मीडिया पर MQM के दीगर सीनियर रहनुमाओं की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और उन्होंने पाकिस्तान के हक में ट्वीट किया। नाइन जीरो को खोला जाए, सील खत्म किया जाए। कुछ नारे नाकाबिले माफी होते हैं। MQM के कायद की तकरीर के बाद मुत्तहिदा रहनुमा भी वतन के दिफा पर उठ खड़े हुए। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक ट्वीट सामने आए और उन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत का दिल खोलकर इजहार किया। डॉक्टर आमिर लियाकत, जो कल तक मुत्तहिदा कायद की तकरीर का दिफा कर रहे थे, रेंजर्स की हिरासत के रिहाई के बाद प्रेस क्लब पहुंचे और बोल उठे कि अल्ताफ हुसैन को इलाज की जरूरत है। पहले जरूरी है कि वो अपने एक जो उनकी जहनी कैफियत है, उस जहनी कैफियत को बेहतर कर लें, क्योंकि बार बार माफी और बार बार तलाफी, कुछ नारे नाकाबिले माफी होते हैं और नाकाबिले तलाफी होते हैं, उसके बाद कोई बात नहीं की जा सकती। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ख्वाजा इजहार ने बताया कि आमिर खान ने भी हमारे मौक़िफ़ की हिमायत की है। कन्वीनर आमिर खान भाई जो है वो साउथ सिटी हॉस्पिटल में है, उनका फोन आया है कि वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ हैं। इसी तरीके से जो हमारे अरकान मुल्क से बाहर हैं, उन्होंने भी फर्दन अपनी मौक़िफ़ की बात की है। मुत्तहिदा के रहनुमा सलीम शहजाद ने भी कहा कि पार्टी के तमाम सीनियर रहनुमा मुहिब वतन हैं। उन्होंने फारूक सत्तार और राब्ता कमेटी पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया है। नाज़रीन, MQM कायद की पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर और हंगामा आराई के बाद MQM के ओहदेदारों समेत सैकड़ों कारकुनान को गिरफ्तार किया गया था। तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव पर 2 मुकदमात, जबकि आर्टिकल 6 के तहत मुत्तहिदा कायद समेत 5 रहनुमाओं और 1500 कारकुनान पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया। पाकिस्तान मुखालिफ बयान और कराची में हंगामा आराई। MQM कायद और रहनुमाओं समेत सैकड़ों कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुज़िश्ता रोज होने वाली सूरत हाल के बाद रेंजर्स ने चुन चुन कर गिरफ्तारियां की। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद को हिरासत में लिया गया।
नॉर्थ कराची से कमर मंसूर, शाहिद पाशा और कंवर नवीद को हिरासत में लिया गया। फारूक सत्तार और ख्वाजा इजहार को कराची प्रेस क्लब, आमिर लियाकत को आई चुंदरीगढ़ रोड, जबकि आमिर खान को भी हिरासत में लिया गया। तमाम अफराद के खिलाफ जलाओ, घिराव और गद्दारी के मुकदमात कायम किए गए। थाना आर्टिलरी समेत मलीर में 2 मुकदमात दर्ज हुए, जिनमें मुत्तहदा के 5 रहनुमाओं समेत 1500 मुल्ज़िमान को नामजद किया गया। ताहम कई घंटों की हिरासत के बाद आज सुबह आमिर खान, फारूक सत्तार और आमिर लियाकत को रिहा कर दिया गया, जबकि कंवर नवीद जमील, कमर मंसूर और शाहिद पाशा समेत